ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام لقمان ہے اور میں ایک سیدھا سادھا انسان ہوں۔ زمانے کی چالاکیوں سے بالکل ہی ناواقف ہوں۔ میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ گھر کے صحن میں ہی ایک دکان ڈالی ہوئی ہے جس میں سودا سلف وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ محلے کے لوگ زیادہ تر ضرورت کی چیزیں میری دکان سے ہی خریدتے ہیں، جس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ میں ٹانگ سے معذور ہوں اور یہ معذوری ساری زندگی میری بہت ساری خوشیوں میں رکاوٹ بنی رہی۔ اکثر لوگ مجھ سے میری معذوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی مجھ سے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ ہمیں اماں نے ہی پالا پوسا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میں ان میں سے سب سے بڑا ہوں۔ اماں کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا اور مجھ معذور کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، لیکن انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کی۔ ہمیشہ ہمارا اچھے سے اچھا خیال رکھا۔ جب وہ کام پر جاتیں تو مجھے پڑوس کی عورت کے پاس چھوڑ دیتی تھیں اور اس کے بدلے اسے کچھ پیسے دیتی تھیں۔ میرا بچپن یوں ہی اکیلے پن میں گزرا تھا، جس وجہ سے مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں ان سے اچھے سے بات نہیں کر پاتا تھا، مگر میری اماں کا کہنا تھا کہ تمہاری معذوری کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دو اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چھوڑ دو۔ پھر اماں کی مدد سے میں نے ہمت کر کے گھر کے صحن میں ہی دکان ڈال لی تھی اور اس وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی۔ اب میں دوسروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر لیتا تھا۔ اب مجھے ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا جو میری معذوری کا مذاق اڑاتے تھے۔ خاندان کے اکثر لوگ کہتے تھے، یہ تو معذور ہے، اسے کون اپنی بیٹی دے گا، اسے کون لڑکی شادی کرے گی؟ مگر میری اماں مجھے تسلی دیتی کہ تمہارے نصیب میں بھی کوئی اچھی لڑکی لکھی ہوگی، اور میں اماں کی بات پر افسردگی سے مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی میں اپنی فیملی بنا سکوں گا، کیونکہ میں معذور ہوں۔ شاید ہی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو۔ لوگوں کی ایسی باتیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ نہ جانے لوگ کیسے مجھ جیسے معذور لوگوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں کوئی معذوری نہیں دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ ہمارے پاس بھی دل ہوتا ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور شاید مجھ جیسے لوگ بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں ہر وقت لوگوں کے طعنوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ معاشرہ اور یہ لوگ ہمیں دیوار سے لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرا صرف ایک ہی دوست تھا جو میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے گھر والوں کے بعد وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میری اس سے بچپن سے دوستی تھی۔ اس نے کبھی بھی میری معذوری کا مذاق نہیں اڑایا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے یہ جتایا تھا کہ میں صحت مند نہیں ہوں۔ گلی کے اکثر بچے اس سے کہتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تم ہمارے ساتھ کھیلو۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہیں سے ہم دونوں کی دوستی اتنی پکی ہوئی کہ اب تک ہم ساتھ تھے۔ ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر ہمارا اپنا تھا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں وہ گھر کسی سے قرضہ لے کر بنوا لیا تھا۔ اس وقت گھر بنوانے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابا نے جس سے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ ابا اتار نہیں پائے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد قرض دار نے کئی مہینے اماں کو پریشان کیے رکھا۔ اماں نے دن رات کام کر کے بہت ہی مشکل سے اس قرض کو اتارا تھا، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ ہمارے سروں پر جو چھت تھی وہ ہماری اپنی تھی۔ اگر ہم کرائے کے گھر پر رہتے ہوتے تو ادھر ادھر ہر وقت دھکے کھاتے رہتے۔
1-2 बार तो मेरे ताया और चचा ने हमारे घर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। उनका कहना था कि ये उनके भाई का घर है और इस पर उन लोगों का हक है, मगर अम्मा ने बहुत मुश्किल से इस घर को उनके कब्जे में जाने से बचाया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये छत हमसे छिन गई तो वो और उनके बच्चे रोड पर रुल कर रह जाएंगे। हमारे मोहल्ले में कोई भी अमीर नहीं था, सब मिडिल क्लास के ही लोग थे जो मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। वैसे भी इतनी महंगाई हो चुकी थी कि इंसान जितना कमाता है वो कम पड़ता और हर एक को एक दूसरे से कर्जा लेना ही पड़ता था। जब मैंने दुकान डाली थी तो जिन घरों में अम्मा काम करती थीं, अम्मा ने वहां से सबसे थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया था, जिसे काम करके वो चुका रही थी। मैंने पक्का सोच लिया था कि जब मेरी दुकान अच्छी चल पड़ेगी तो मैं अम्मा को काम छोड़कर घर पर बैठने का कहूँगा, क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने हमारे लिए कमाया था। अब मैं चाहता था कि वो बैठ कर खाएं, और मुझे हरगिज पसंद नहीं था कि मेरी अम्मा लोगों के घरों में सफाई वगैरह करें। और जब मेरी दुकान अच्छी चल पड़ी थी तो मैंने अम्मा से जिद करके उन्हें काम वगैरह छोड़ने को कहा था। शुरू में तो अम्मा मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें मना ही लिया और मेरी जिद के आगे उन्हें हार माननी ही पड़ी। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता और अम्मा घर के काम काज वगैरह किया करती थी। मेरी बहनें और भाई स्कूल जाते थे। मैं चाहता था कि मैं तो तालीम हासिल नहीं कर पाया, मगर वो लोग तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर अपना नाम बनाएं। सुबह के वक्त बहन भाई स्कूल चले जाते थे और मैं दुकान में मसरूफ हो जाता था। अम्मा घर के अंदर काम करती रहती थी। हमारी जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन अम्मा ने कहा कि देख, तेरे सारे ताया और चचा के बच्चों की शादियां तय हो चुकी हैं और तू अब तक कंवारा ही घूम रहा है। मैं तेरी भी शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर में जल्द से जल्द बहू लेकर आ जाऊं। अम्मा की बात सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया और मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तू ऐसे ख्वाब मत सजा। तू जानती है ना कि मुझ जैसे माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा, फिर भी तू बार बार यही बात दोहराती रहती है। अम्मा ने कहा कि तुझ में क्या कमी है? माजूर है तो क्या हुआ? अपनी दुकान है तेरे पास, कमाता है, किसी को क्या मसला है? और तेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? ये बात तो तूने खुद से सोच रखी हुई है। लोगों का काम तो बातें बनाना है, वो बनाते हैं। तू अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दे, लोगों की बातों की तरफ मत ध्यान दे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी और ना ही मुझसे शादी करना चाहेगी। कौन से वालिदैन होंगे जो अपनी बेटी मुझे देंगे? मेरी मायूसी भरी बातें सुनकर अम्मा बोली, देखना, तुझे बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलेगी। मैं अम्मा की बात सुनकर हंस पड़ा। अम्मा ने उसी दिन से रिश्ते वाली को बुलवाकर रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। मैं जानता था कि यह सब कुछ दिन चलेगा और उसके बाद अम्मा थक हार कर बैठ जाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। एक दिन अम्मा मेरे पास आई और बोली कि ये तस्वीर देखो, लड़की अच्छी है और अच्छे खानदान से है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बात करूं। मैंने कहा ठीक है अम्मा, आपको जो पसंद है आप वहां बात करने, मेरी पसंद नापसंद की फिक्र मत करें। आपको जो पसंद होगी वो मुझे भी पसंद होगी। अम्मा ने कहा ठीक है। अगले दिन अम्मा उसके घर चली गई उसे देखने, और अम्मा को वो लोग भी पसंद आए, तो अम्मा ने उन्हें हमारे यहाँ आने की दावत दे दी। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं अच्छे से तैयार होकर आ जाऊं। मैं जानता था कि वो लोग मुझे देखते ही इस रिश्ते से मना कर देंगे, लेकिन अम्मा का दिल रखने के लिए मैं तैयार होकर मेहमानों के सामने आ गया। जैसे ही उन्होंने मुझे लाठी के सहारे चलते हुए आते देखा तो बोले, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका बेटा माजूर है? अम्मा उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और बोली, असल में इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ था और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। मेरा बेटा माजूर है लेकिन खुददार है, वो अपना ख्याल खुद रख लेता है, अच्छा कमाता है
اور کیا چاہیے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک معذور انسان سے ہرگز نہیں کر سکتے، آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بنا کوئی اور بات سنے وہاں سے فوراً سے نکل گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا، لیکن اماں کا دل ٹوٹ گیا۔ مگر وہ مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا تو پریشان مت ہو، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا اماں میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن آپ پھر بھی ضد کر رہی تھی۔ اب دیکھ لیا نا آپ نے۔ اماں بولیں تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد اماں نے اور بھی کئی رشتے دیکھے، لیکن سب سے مجھے میری معذوری کی وجہ سے ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک دن اماں میرے پاس آئی اور بولی، دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تجھے لڑکی ضرور ملے گی۔ آج میں ایک لڑکی کو دیکھنے گئی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا اماں کیا واقعی؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں نے لڑکی سے خود بات کی ہے، وہ اپنے پورے دل سے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اماں کی بات سن کر کافی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں؟ اماں نے کہا کہ میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا اور اسے تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے، وہ پورے دل سے راضی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ کوئی لڑکی مجھ معذور سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہے، اور اماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ تو کافی خوبصورت تھی، اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی؟ اور اماں کا تو کہنا تھا کہ وہ کافی خوش ہے، لیکن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں بار بار اماں سے یہی بات پوچھے جا رہا تھا کہ کہیں اس کے گھر والوں نے اس پر زبردستی تو نہیں کی، یا کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کافی اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی الٹا سیدھا سوال بھی نہیں کیا۔ اماں اتنا کہہ کر اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئیں اور پیچھے مجھے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گئیں۔ میں اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک حسین لڑکی نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ بات واقعی میں کافی عجیب تھی۔ اماں نے کہا کہ میں تمہاری منگنی کروں گی اور اس کے بعد ہم پورے خاندان والوں کو بتائیں گے کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اماں نے انگوٹھی اور کچھ کپڑے وغیرہ خریدے اور مجھے ساتھ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ ہم نے منگنی کی تقریب بہت ہی سادگی سے کی تھی۔ میں نے آج بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے ویسے بھی اماں کی پسند پر ہاں کر دی تھی، اور تصویر تو دیکھی ہی تھی۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں کوئی لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے۔ مگر کبھی کبھی میں دکان پر بیٹھا اپنی زندگی میں آنے والی اس انجان سی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اسے کیا پسند ہوگا، وہ کیا کرتی ہوگی، کیسی ہوگی، بولتی کیسا ہوگی، چلتی کیسی ہوگی۔ یہی سب چیزیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں۔ بہت سے سوالات تھے جو مجھے اکثر پریشان بھی کرتے تھے، مگر ایک طرف میں خوش تھا اور ایک طرف پریشان۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد بہو کو گھر لے آؤں۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ دن میں رشتے سے منع بھی کر دیں۔ اماں بولیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تمہاری منگنی کی ہے، اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں میں کیسے یقین کر لوں، اتنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اس نے میرے ہی رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ آخر کوئی تو بات ہوگی نا۔ اماں نے کہا تو بھی نا بس لوگوں کی باتوں میں آ کر یہی سب سوچتا رہتا ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ تیری شادی نہیں ہو سکتی؟ دنیا میں بہت سے ایسے معذور لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پہلا تو نہیں ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں یقین نہیں آ رہا۔ اماں بولیں یقین کر لے، یہی سچ ہے، بس اپنا دھیان شادی کی تیاریوں کی طرف لگا، کیونکہ میں جلد ہی شادی کی تاریخ لینے والی ہوں، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔
अम्मा की बेताबी देखकर मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। और मैंने अम्मा को अच्छे खासे पैसे भी दे दिए ताकि वो आसानी से तैयारियां कर लें। अम्मा तो मेरी तरफ से हाँ सुनकर ही बहुत खुश हो गई। अम्मा ने खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और पूरे ख़ानदान में ये खबर फैला दी कि मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो रही है। जो भी सुनता उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। ख़ानदान की औरतें और मोहल्ले की औरतें चस्के लेने के लिए हर वक्त हमारे घर पर मौजूद रहती थीं कि न जाने कैसे रिश्ता हो गया। मुझे भी इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन अम्मा की खुशी के लिए मैं चुप था। वो न जाने कब से मेरी शादी के सपने सजाए बैठी थी, इसलिए वो जो कर रही थी मैं उन्हें करने दे रहा था। एक एक चीज़ अम्मा ने अपनी पसंद से खरीदी थी। वो इस शादी के लिए मुझसे भी ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई तो अम्मा ने एक तारीख पक्की कर दी। सारे मोहल्ले को दावत दी गई। गली में ही शामियाने लगाकर शादी का इंतज़ाम किया गया था। हम बारात लेकर उनके घर गए। मैं दुल्हन को आज पहली बार अपने सामने देखने वाला था। उससे पहले मैंने उसे कोई मुलाकात नहीं की थी, बस तस्वीर ही देखी थी, लेकिन अब उसे देखने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि ये तस्वीर में इतनी खूबसूरत नज़र आने वाली लड़की दुल्हन बनी कैसी लगती है। थोड़ी ही देर में निकाह शुरू हो गया। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन को आमने सामने बिठाया गया। मैंने उसे देखा तो वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रही थी। मुझे अम्मा की पसंद की दाद देनी पड़ी। उन्होंने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये शादी हम दोनों के लिए बहुत अच्छी साबित हो। कुछ देर में खाना खुल गया और खाने के बाद रुखसती का ऐलान हुआ। जब हम उसे रुखसत करके घर पर लाए तो अम्मा ने मुझसे कहा कि देख, वो तेरी जिंदगी की साथी है, इसलिए हमेशा उससे बहुत अच्छे से पेश आना और अपनी माजूरी की वजह से कभी भी मायूस मत होना और ना ही एहसास कमतरी का शिकार होना। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर कमरे में चला आया। वो सिमटी हुई सी और घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मुझे देखकर घबरा गई। उसकी हर अदा मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैंने जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश की, उसने मुझे रोक दिया। मैं समझा शायद शर्मा रही हो, इसलिए मैंने उसे इसरार नहीं किया। अगली सुबह उसके घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। उनके चेहरों से यूं लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। शादी तो सबकी मर्जी से हुई थी। शादी के शुरू के दिन काफ़ी अच्छे गुजरे, लेकिन उसने अब तक मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। एक दिन जब मैंने उससे इसकी बात की वजह पूछी तो उसने कहा कि दरअसल मैंने 40 दिन का वजीफ़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपके करीब नहीं आ सकती, वरना वो वजीफ़ा टूट जाएगा और वजीफ़ा टूटने की वजह से मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। मैंने कहा, ये कैसी बात हुई? ये तो कोई वजह न हुई, और ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो करीब आने से टूट जाएगा? अब तो मैंने पक्का सोच लिया था कि मैं उसे हर हाल में हासिल करके ही रहूँगा, और फिर मैंने उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसे हासिल कर ही लिया। वो मुझसे सख्त नाखुश लग रही थी। उसने मुझे बहुत बार मना भी किया था कि उसका वजीफ़ा टूट गया तो उसकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैं अपने बिस्तर पर सो गया और वो बैठी रो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने करवट बदलकर अपनी बीवी की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मेरे बराबर में मेरी बीवी की जगह वहां पर एक बहुत ही हसीन और नाजुक अंदाम सी लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं चौंक गया। कुछ पल तो मैं अपनी निगाहें उस पर से हटा भी नहीं पाया। तभी मैं फिर अपने हवासों में वापस आया और इधर उधर निगाह दौड़ाई। मेरी बीवी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। तभी मैंने उस लड़की से कहा कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरी बीवी कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ।
اس کی آواز بالکل میری بیوی جیسی ہی تھی۔ میں نے کہا لیکن اس کی شکل و صورت تو ایسی نہیں تھی۔ تم کون ہو؟ حقیقت میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا میں ایک جن زادی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میں تمہاری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ یہ اس کی شادی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میں اتنے لمبے عرصے سے تمہاری بیوی پر حاوی ہوں اور وہ اس بات کو جانتی بھی ہے، لیکن اس نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ وہ ایک عامل کے پاس گئی تھی جس نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی، شادی کے 40 دن تک اس کا شوہر اس کے قریب نہیں آئے گا تو میرا سایہ اس پر سے ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن اب تم نے زبردستی اسے حاصل کر لیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے اسے نہیں بلکہ مجھے حاصل کیا ہے، کیونکہ میں اس پر حاوی تھی۔ اس جن زادی کی باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی میرے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے اٹھ کر باہر بھاگا اور پورے گھر میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ اماں نے جب مجھے یوں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولی کیا ہوا؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اماں بولی تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں ہوگی، صبح سے وہ باہر نہیں آئی ہے، تم ادھر ادھر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے یا تم نے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں تو میری بیوی موجود نہیں ہے۔ اماں بولی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صبح سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے اسے باہر آتے نہیں دیکھا۔ چل میں تیرے ساتھ چل کے دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں میرے ساتھ کمرے میں آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے ہی میری بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بولی دیکھ، یہ تو بیٹھی ہے تیری بیوی اور تو پاگلوں کی طرح باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو یہ یہاں پر نہیں تھی، یہاں پر تو کوئی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا کیسی جن زادی؟ تو پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر کچھ دیر پہلے ایک جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اصل میں ایک جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ میری بات پر اماں نے بالکل یقین نہیں کیا اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی تو منہ ہاتھ دھو کر آ، میں تجھے دم کروانے لے جاتی ہوں۔ لگتا ہے تو نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس کا اثر تجھ پر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہی؟ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، یہاں پر ابھی کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اماں بالکل نہیں بانی اور بولی کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ میری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر اماں کمرے سے چلی گئیں۔ جیسے ہی اماں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں میری بیوی کی جگہ وہی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول کے اماں کو بلایا اور کہا کہ اماں دیکھ دیکھ، وہ رہی وہ جن زادی۔ اماں دوبارہ آئیں لیکن وہاں پر میری بیوی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اماں وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ جیسے اماں وہاں سے جاتی وہ جن زادی سامنے نظر آنے لگ جاتی اور جیسے اماں آتی تو وہاں میری بیوی نظر آنے لگ جاتی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے باہر ہی صحن میں لگے نل سے منہ ہاتھ دھویا اور چپ چاپ اماں کے پاس کچن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی پریشان مت ہو، میں تجھے دم کروانے لے جاؤں گی، تو ٹھیک ہو جائے گا، شاید تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اماں کی بات پر آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ پر اماں بھی یقین نہیں کریں گی اور نہ میں اماں کو یہ سمجھا سکتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ناشتہ کر کے میں دکان پر چلا گیا۔ صبح صبح کے وقت ہی لوگ دکان پر سودا سلف لینے آ جاتے تھے اور میں شام تک دکان میں ہی مصروف رہتا تھا۔
लेकिन आज तो मेरा घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। रात के 9 बज गए थे। मैंने अब तक दुकान बंद नहीं की थी। अम्मा कई बार आकर मुझे आवाज़ दे चुकी थी कि घर आकर खाना खा लो और दुकान बंद करके सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन मैं अम्मा को क्या बताता कि मैं दोबारा उस जिनजादी के खौफ की वजह से अंदर नहीं जाना चाह रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोग खाना खा लें, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे कुछ देर काम से बाहर जाना है। ये तो सिर्फ मैंने बहाना ही बनाया था। मैंने दुकान का दरवाज़ा बंद किया और उठकर घर से बाहर निकल गया। पीछे अम्मा मुझे आवाज़ें ही देती रह गईं कि इतनी रात को कहाँ जा रहा है और ऐसा कौन सा काम है जो इस वक्त जाना ज़रूरी है। मैंने अम्मा को कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल आया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं। वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके थे, मैं उससे मिलने नहीं गया था। मेरा एक वही वाहिद दोस्त था और जब से मेरी शादी हुई थी उससे मुलाकात भी नहीं कर पाया था। आज अच्छा मौका था, मैं उससे मिल सकता था। थोड़ी देर बाद ही मैं उसके घर के सामने खड़ा था। पिछली गली में उसका घर था। दरवाजे पर उस वक्त मुझे देखकर वो परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ, खैरियत है इस वक्त? मैंने कहा, खैरियत है, सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं, बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने बैठकर बातचीत नहीं की। उसने मेरे हाथ से लाठी ली और साइड पर रखी और बोला, ठीक है। वो मेरा बाजू अपने कंधे पर रखकर मुझे सहारा देते हुए अंदर ले गया। मुझे कुर्सी पर बिठाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम यहां बैठ जाओ, हम चाय बाद में पी लेंगे, अभी बातचीत करते हैं। वो बोला, आज मेरी याद कैसे आ गई, वरना जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने तो मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई, तुम तो भूल ही गए कि तुम्हारा एक दोस्त भी है। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, बस मसरूफ हो गया था। वो बोला, बस बस, मुझे पता है लोग ऐसे ही बदल जाते हैं। मैंने कहा, अच्छा अब नाराज़गी ख़त्म कर दो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो भी संजीदा हो गया और बोला, क्या बात है, किस बात से परेशान हो? मैंने उसे सुबह वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी बीवी पर एक जिनजादी हावी है और तुम्हें आज तक इस बात का पता नहीं चला? मैंने कहा, आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मुझे शक होता, लेकिन आज खुद उस जिनजादी ने मुझे बताया कि वो मेरी बीवी पर हावी है। और जब मेरी अम्मा सामने होती है तो मुझे मेरी बीवी नज़र आती है, जब वो नहीं होती तो वहाँ पर सिर्फ जिनजादी होती है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मुझे अपने कमरे में जाते हुए भी खौफ आ रहा है। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और अभी भी वहाँ से उठकर फ़ौरन तुम्हारे पास आ गया। यार मुझे कोई हल बताओ, मैं ऐसे तो नहीं जी सकता। मेरी बात सुनकर वो बोला, हाँ ये तो वाकई में बहुत परेशानी वाली बात है, कुछ सोचते हैं। फिर हम दोनों मिलकर सोचने लगे। तभी उसने कहा, मेरे दिमाग में एक हल तो है, अगर तुम मानो तो। मैंने कहा, बताओ क्या हल है? उसने कहा, हम एक बाबा जी के पास जाएंगे। तुम्हें याद है वो बाबा जी जो यहाँ से कुछ दूर ही एक झोंपड़ी में रहते हैं? मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे याद हैं, वो काफ़ी मशहूर बाबा जी थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो जिन्नात वगैरह निकालते हैं। मेरा दोस्त बोला, हम उसके पास जाएंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके। तुम उन्हें पूरी बात बताना। मुझे उम्मीद है वो उस जिनजादी को ज़रूर अपने कब्जे में करके यहाँ से चले जाने को कहेंगे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या वाकई में ये मुमकिन है, वो हमारी मदद कर पाएंगे या नहीं? अगर उस जिनजादी ने जाने से मना कर दिया तो? वो बोला, ये हमारा काम नहीं है, ये बाबा जी का काम है। अब तक न जाने वो कितने जिन्नात को अपने कब्जे में कर चुके हैं। मैंने कहा, ठीक है, क्या आज रात में तुम्हारे पास ठहर सकता हूँ? तो वो बोला, बिल्कुल, तुम मेरे पास रुक सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं, वैसे भी मेरे घर वाले गांव गए हुए हैं। मैंने कहा, ठीक है। उसने मुझे बिस्तर बिछा कर दिया और मैं वहीं पर सो गया और वो अपने कमरे में चला गया। मुझे इतने अरसे बाद बहुत अच्छी नींद आई थी। अभी मुझे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे अपने पास बहुत ही करीब से
चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर नींद से उठ गया और जो ही आंखें खोली तो देखा मेरे ऐन सामने वो जिनजादी बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो मुझे घूर रही थी। फिर बोली, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए था। उठो, अपने घर जाओ। मैंने कहा, मैं इस वक्त कैसे जा सकता हूँ, आधी रात हो रही है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और जोर से चिल्लाकर बोली, उठो। मैं डरकर एकदम चीख उठा। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मेरा दोस्त दूसरे कमरे से भागा हुआ आया और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कोई मसला हो गया है? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। उसने कहा, कैसे कोई बात नहीं? तुम रात के इस वक्त इतनी जोर से चीख रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मुझे बताओ, क्या बात है? क्या तुमने फिर से उस जिनजादी को देखा है? मैंने कहा, हाँ, अभी वो यहाँ पर आई थी और कह रही थी कि घर जाओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोला, परेशान मत हो, मैं अपना बिस्तर यहीं पर ले आता हूं और यहीं पर सो जाता हूं। मैं दूसरे कमरे में गया और अपना बिस्तर उठा कर ले आया और वहीं सो गया, क्योंकि एक बात तो पक्की हो गई थी कि वो जिनजादी दूसरों की मौजूदगी में मेरे सामने नहीं आती थी। मैं भी कुछ देर बाद सो गया। सुबह दोस्त ने उठाया और कहा कि चलो उठो, नाश्ता कर लो और फिर अपने घर चलो, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने लगा। वो मुझे सहारा देकर दरवाजे तक लाया और कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। मैं उसके साथ वापस घर आया। उसने अम्मा से कहा कि ये रात को मेरे पास ही ठहर गया था। काफ़ी दिन हो गए थे हमने मुलाकात नहीं की थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास रुक जाओ। अम्मा ने कहा, ठीक है। मैं अंदर आया तो अम्मा बोली, तुम पूरी रात से कहाँ थे? मैं इतना परेशान होती रही, पूरी रात में एक सेकंड को भी नहीं सोई और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हम दोनों कितना परेशान थे, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? मैंने कहा, मेरी बीवी वो कहाँ है? अम्मा बोली, वो अपने कमरे में है, और कहाँ होगी? मैं फ़ौरन से कमरे में आया तो देखा वहाँ पर सामने ही मेरी बीवी लेटी हुई थी। मैंने जाकर फ़ौरन उसे उठाया और कहा कि उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? वो जिनजादी कौन है और वो तुम पर क्यों हावी हुई है? उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे यूं सवालात करने पर वो घबरा गई और बोली, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो मुझे बता रही थी, उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। जब उसने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं अपना सर थाम कर बैठ गया। आज मुझे समझ आया कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने मुझ जैसे माजूर लड़के से शादी करने के लिए हाँ क्यों की और मुझे ही शादी के लिए क्यों चुना। मेरे वो सवालात जिनके जवाबात मैं हर वक्त ढूंढता रहता था, अब जाकर मुझे मिल गए थे और इस बात की तस्दीक उसने खुद भी कर दी थी कि उसने सिर्फ इसी वजह से मुझसे शादी की थी। मैंने उससे कहा कि अब इसका हल क्या है, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरा दोस्त मुझे एक बाबा जी के पास लेकर जाएगा, तुम भी मेरे साथ चलना। वो बोली, ठीक है। मैंने कहा, लेकिन अम्मा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। थोड़ी देर बाद हमने अम्मा से कहा कि हम उसके माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। अम्मा ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। मैं उसे साथ लिए पिछली गली में आया और दोस्त से कहा कि जल्दी निकलो, हम जाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि क्या भाभी भी हमारे साथ जाएंगी? मैंने कहा, हाँ। मैंने उससे सारी बात पूछ ली है, अब हम तीनों उस बाबा जी के पास जाएंगे। उसने कहा, ठीक है। हम पैदल ही बाबा जी के आस्थाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर में हम आस्थाने के बाहर पहुंच गए थे। हमने अंदर से इजाज़त मांगी। जैसे ही इजाज़त मिली हम तीनों अंदर चले गए। मेरी बीवी ने बाबा जी को बताया कि एक दिन मैं छत पर खुले बालों के साथ खड़ी थी और गाना गा रही थी। तभी अचानक से मुझ पर एक जिनजादी हावी हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझ पर हावी है, लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरे सामने आई और उसने कहा कि मैं तुम पर हमेशा हावी रहूंगी, क्योंकि मुझे
तुम्हारे बाल बहुत पसंद है और तुम्हारी आवाज़ भी। तुम मेरे लिए गाना गाना। मैंने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो वो मुझे एक आमिल के पास ले गए। उस आमिल ने मुझे कहा कि मुझे एक माजूर लड़के से शादी करनी होगी और 40 दिन तक उस लड़के को खुद को हाथ मत लगाने देना। 40 दिन तक ये अमल जारी रहेगा, उसके बाद वो जिनजादी खुद ब खुद तुम्हारे पास से दूर चली जाएगी। आमिल की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मेरे बाप बाप ने इस माजूर लड़के से मेरी शादी करने का फैसला किया, मगर उसने वक्त से पहले ही मुझे छू लिया, जिस वजह से वो जिनजादी से नजर आ गई। अब आप बताएं कि इस चीज़ का क्या हल है। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें दम करके दूंगा, लेकिन यह बहुत गलत बात है कि तुमने एक माजूर लड़के को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, मेरे माँ बाप ने मजबूरी में ये रिश्ता किया है। मैं उस जिनजादी के चले जाने के बाद भी अपने शौहर के साथ बखुशी रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा उठी और उसने कहा कि मुझे तुमसे सच में मोहब्बत है और मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ कि तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। उसकी बात सुनकर मैंने बाबा जी से कहा कि आप हमारी मदद करें, किसी तरह से उस जिनजादी को हमसे दूर कर दें, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हर वक्त मुझे वो नज़र आती है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो जिनजादी वहाँ पर हाजिर हो गई। बाबा जी ने उससे कहा कि अब से तुम इस लड़की से दूर हो जाओगी और इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। लेकिन वो जिनजादी मान ही रही थी, जिस पर बाबा जी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और एक तावीज़नुमा चीज़ हमें दी और कहा कि उसे मिट्टी में दबा देना। हम तीनों वहाँ से फौरन निकले और दूर मैदान में चले गए। वहाँ गड्ढा खोदा और उस तावीज़नुमा चीज़ को उस गड्ढे में दफना कर वापस आ गए। बाबा जी ने कहा था कि 1 हफ्ते तक दम वाला पानी पीना है और उसका छिड़काव घर के हर हिस्से में करना है। मुमकिन है कि उसके बाद वो जिनजादी हमारे करीब ना आए। बाबा जी की हिदायत के मुताबिक मैंने पूरे घर में जगह जगह पानी का छिड़काव कर लिया। हम दोनों रोज़ पानी भी पीते थे, जिसकी वजह से वो जिनजादी दोबारा हमारे करीब नहीं आई। मैं खुश था कि चलो ये मुसीबत तो हट गई। जब उसके माँ बाप को पता चला कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है तो उन्होंने उससे कहा कि अब इससे तलाक ले लो। ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये मेरा शौहर है और मैं हरगिज़ तलाक नहीं लूँगी। लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि ये एक माजूर है और तुम एक माजूर के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो। इनके बहुत ज़्यादा दबाव देने पर भी मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लेने से इनकार कर दिया। अम्मा को भी मैंने सारी बात बता दी थी। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैं रोज़ अपनी दुकान पर बैठता था और पूरा दिन वहीं पर मसरूफ़ रहता। बीच में मेरी बीवी मुझे खाना वगैरह दे जाती थी। वो इन दिनों उम्मीद से थी। मैं बहुत खुश था कि हमारे घर में एक नन्हा बच्चा आने वाला है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इन सब के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे नसीब में ये सब नहीं है और कोई भी लड़की मुझे अपनाएगी नहीं, और ना ही मेरे आंगन में कोई बच्चे खेलेंगे, ना कभी मेरी कोई फैमिली बनेगी। लेकिन अब सब अच्छा हो रहा था। कुछ अरसे बाद मेरी बीवी ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसे अपने हाथों में उठाया तो मैं खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।